Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the coordination chemistry, father of coordination, Warner theory, and some of the keywords. और इस बार हम कुछ बचे हुए keywords के साथ साथ देखने जा रहे हैं nomenclature of the coordination compounds. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं homoleptic and heteroleptic compounds. क्या होते हैं homoleptic compounds and क्या होते हैं heteroleptic compounds. So when we talk about the homoleptic and heteroleptic compound, तो हम बोलते हैं the homoleptic compounds are those of the compound having a single type of ligand, जिसके पास सिर्फ एक तरह का ligand हो वो कहा जाएगा homoleptic ligand, and which have more than a single type of ligand that will be heteroleptic compounds. तो अगर हम देखें this is the compound K4Fe(CN)6, सिर्फ एक तरह का ligand है that is the cyanide. So it is a homoleptic compound. अगर आप देखें NiCO4 तो एक ही तरह का ligand है CO, so again it is a homoleptic compound. But if the compound is CONH3 thrice H2O thrice Cl3, तो यहाँ देखिए दो तरह के ligand है अमोनिया एंड वाटर, और एज ए रिजल्ट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड. या फिर कुछ ऐसा देखिए, ये है आपका COEN ट्वाइस Cl2 एंड Cl. फिर से देखिए यहाँ पे दो तरह के लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड. तो अगर दो या दो से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होते हैं then that will be called the heteroleptic compound, and when there is a only single type of ligand that will be called the homoleptic compound. Okay. Now, the coordination sphere. Coordination sphere. You have studied about the coordination entity, and there we have said that the central atom plus ligand is called the coordination entity. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल एटम और लिगेंड के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, या सिंपलीफाइड है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. एंड द स्फीयर इन विच द कोऑर्डिनेशन एंटिटी सर्वाइव्स, वो स्फीयर जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहती है दैट स्फीयर विल बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो किस स्फीयर के अंदर रहती है? Actually, when we talk about any of the molecule, we talk about the movement of the molecule, we talk about the kinetics of the molecule, and when we talk about the kinetics of the molecule, there are total three different type of the kinetics, that is called the transitional movement, vibrational movement, and rotational movement. Surely in the case of the solids, the transitional movement is not allowed because the particles are so close compact. तो पार्टिकल इतनी एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि उनका ट्रांजिशनल मूवमेंट अवेलेबल नहीं है. लेकिन बचे हुए दो मूवमेंट तो अवेलेबल है ना, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. अपनी पोजीशन पे यूं वाइब्रेट करते रहते हैं और अपनी पोजीशन पे यूं रोटेट भी करते रहते हैं. तो यहाँ पे जब ये रोटेट करते हैं तो इनके रोटेशन होने से जब 3D में रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, दे विल फॉर्म अ स्फीयर, and the sphere which they are going to form, that is called the coordination sphere. So we can say the sphere in which the coordination compound survive, that is called the coordination sphere. And the last word, that is the polyhedron, that is the coordination polyhedron. पॉलीहेड्रॉन आप लोगों ने पहले वर्ड पढ़ रखा है, तो पॉलीहेड्रल शेप्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन. सो द शेप इन विच द कोऑर्डिनेशन एंटिटी सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. दैट मे बी टेट्राहेड्रल, दैट मे बी ऑक्टाहेड्रल, दैट मे बी ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल. तो ऐसा कोई भी जो शेप जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी सर्वाइव करती है वो सारे के सारे शेप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के कैटेगरी में आएंगे. ओके, then these were the some of the keywords which is used in the coordination chemistry. अब यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभार क्वेश्चन कि if you are treating a or coordination compound with the AgNO3 and
And if X number of the AgCl is precipitized, then what is the number of primary linkage और what is the number of the secondary linkage? एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को देखें, दिस इज द कंपाउंड CO H2O6 and Cl2। अगर इससे AgNO3 का ट्रीटमेंट कराया जाए और AgNO3 के ट्रीटमेंट कराने पे 2 मोल AgCl प्रेसिपिटाइज करें, then what is the molecular formula of the compound, exact molecular formula of the compound, and what is the number of primary and secondary linkage? इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। So when you will see the precipitation of the AgCl, you know well that the AgCl's precipitation is taking place due to the formation of the chloride ion। chloride ion बना होगा, इसी वजह से AgCl बन रहा है। और chloride ion कब बन सकता है? When there is a primary linkage। प्राइमरी लिंकेज ही सिर्फ क्लोराइड आयन बना सकता है, सेकेंडरी लिंकेज आयन नहीं बना सकता। आपको मालूम है दे आर बाउंडेड विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे इस वजह से ये बता रहा है 2AgCl is suggesting that there is 2 primary linkage। अब आपको पूछ सकता है, आप अपने बुक में देखेंगे शायद 3rd पेज पे दिए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन, वहां पे आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज। तो आपको प्राइमरी लिंकेज तो मिल गए 2, तो सेकेंडरी लिंकेज तो अपने आप निकल जाएंगे। देयर आर टोटल 6 and 2 8 लिंकेज, जिसमें से 2 तो प्राइमरी लिंकेज निकल गए, बचे कितने? 6 बचे सेकेंडरी लिंकेज। सो 6 सेकेंडरी लिंकेज। एंड व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको लग रहा है कि सामने लिखा ही हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की जरूरत क्या है? एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो अगर इस कंपाउंड को हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे COH2O 6 times and Cl2। और ये इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि 2 प्राइमरी लिंकेज हैं और बचे हुए 6 लिंकेज सेकेंडरी लिंकेज है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे अपने बुक में तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सो हम डायरेक्टली चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर पे और हम पहले लिख लेते हैं सम स्टेप्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम देखते हैं तो नॉमेनक्लेचर के 2 पार्ट में डिवाइड है। फॉर दोज ऑफ द स्पीशीज व्हिच हैव द कैटायनिक काउंटर आयन, फॉर दोज ऑफ द स्पीशीज व्हिच हैव द नो कैटायनिक काउंटर आयन और द एनायनिक काउंटर आयन और एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द आयन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर दोज द फॉर स्पीशीज हैविंग कैटायनिक काउंटर आयन, जिसके पास कैटायनिक काउंटर आयन होगा उसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कैसे पता चलेगा कि कैटायनिक काउंटर आयन है कि एनायनिक काउंटर आयन है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ आता है काउंटर आयन, तब ये बोला जाएगा कैटायनिक काउंटर आयन, और अगर इसके बाद आता है तो ये बोला जाएगा एनायनिक काउंटर आयन। आपने जान पढ़ रखा है कि कैटायन फर्स्ट, ये एक रूल है, हमेशा कैटायन को पहले लिखा जाता है बाद में एनायन को लिखा जाता है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आता है तो ये कैटायन होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होगा तो एनायन एज अ काउंटर आयन होगा। अब यहाँ पे क्या स्टेप्स हैं, हर एक चीज के लिए एक स्टेप से चलते हैं तो हमें नॉमेनक्लेचर करना आसान हो जाता है। तो हमारा ये पहला स्टेप है फर्स्ट कैटायन विदाउट नंबर। इट मींस जब इसके नेमिंग लिखेंगे, जैसे आपको पोटेशियम इस कंपाउंड का अगर हम करके देखें, ये है आपका K4FeCN6। अगर इसके लिए देखें तो ये है कैटायन, लिखा हुआ है कैटायन विदाउट नंबर, यानी जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसके 4 नंबर को सजेस्ट नहीं करेंगे, यानी हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, 3 होता तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते, या जो भी इनके नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम नहीं लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखने जा रहे हैं? सिर्फ नेम ऑफ द कैटायन। तो हमारा ये कैटायन सिर्फ बताएंगे कि कौन सा कैटायन है, एंड द कैटायन इज द पोटेशियम। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ना कि इनका नंबर। नाउ द सेकंड वन, द लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड साइनाइड है, तो यहाँ पे अगला लिगेंड लिखेंगे। किस कार्ड सीक्वेंस में लिखेंगे? अगर एक ही लिगेंड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे है वैसे लिख लीजिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो
एक से ज्यादा लिगेंड के केस में हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कोई प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं है, जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ करता था कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, हैलोजन की प्रॉपर्टी अल्कोहल से कम है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कोई प्रायोरिटी सीरीज नहीं देखना है, बस अल्फाबेटिकल सीक्वेंस देखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखेंगे। लेकिन लिखते समय एक बात का ध्यान देंगे कि जब भी इनका नाम लिखेंगे तो अगर एनायनिक लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, आपको याद होगा, पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं एनायंस। तो अगर एनायनिक लिगेंड्स होंगे तो उन्हें सफिक्स किया जाएगा ओ से। जैसे यहां पे ये साइनाइड है, एक एनायन है, तो इसे लिखेंगे साइनाइडो। क्लोराइड होता आयन तो उसे लिखते क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो। लेकिन अगर यही वाटर होता जिसे हम एक्वा बोलते हैं तो उसे एक्वा ओ नहीं बोलते या एमिनो नहीं बोलते, वो एमीन ही रहेगा। तो यहाँ पे you will suffix O only with those of the ligands which are anionic by the nature। सिर्फ एनानिक लिगेंड के साथ ही O आपको सफिक्स करना है। एंड द लास्ट वन, सॉरी नेक्स्ट वन, दैट इज द सेंट्रल एटम। अब आ जाइए सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम का इफ पॉसिबल राइट डाउन द लैटिन नेम। सारे कंपाउंड, सारे एलिमेंट्स के लैटिन नेम होते नहीं, इसलिए मैंने कहा इफ पॉसिबल, तो अगर उसके लैटिन नेम है तो लैटिन नेम को ही लिखिए, और लैटिन नेम को भी कैसे लिखिए, सफिक्स विद ATE। यानी अगर आयरन का लैटिन नेम फेरम है, लास्ट में यूएम हटा के ATE लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फेरम की जगह हो जाएगा फेरेट, हाइड्रागैरियम की जगह हो जाएगा हाइड्रागैरेट, या फिर अर्जेंटम की जगह हो जाएगा अर्जेंटेट। तो इस तरह से आप इसके नॉमेनक्लेचर को करेंगे। एंड द लास्ट वन, एक बात और, यहां पे अगर किसी भी एलिमेंट का इंग्लिश नेम ही सिर्फ आपको मालूम है, लैटिन नेम उसका होता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इंग्लिश नेम के साथ ही एट लगा देंगे। जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट। पता कैसे चलेगा कि इसका लैटिन नेम है कि नहीं, अगर आपके सिंबल और एलिमेंट का नाम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यानी इंग्लिश नेम है। जैसे कोबाल्ट का CO, निकल का Ni। लेकिन जब आप देखते हैं मरकरी का Hg, तो मरकरी और Hg में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि उसका कुछ लैटिन नेम होगा। तो यहां से आप पता कर सकते हैं किसका लैटिन नेम है और किसका लैटिन नेम नहीं है। अब लास्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल एटम का। और कैसे लिखेंगे, रोमन में। कभी कभार आप लोग पूछ देते हैं सर जीरो कैसे लिखेंगे रोमन में, तो जीरो नॉर्मल जीरो ही लिखेंगे, रोमन में कोई जीरो का वो नहीं है। आपको मालूम है जीरो आर्यभट्ट जी ने बनाया था और वो डेसिमल सिस्टम में ही यूज होता है, तो यहाँ पे रोमन में हम यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के। और पहला कंपाउंड हमने ऑलरेडी ले रखा है, यहीं से शुरू करते हैं। द कंपाउंड इज K4FeCN6। कहां से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द कैटायन। और कैटायन क्या है इसमें, इसमें कैटायन है पोटेशियम। नाउ वी विल टेक द लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एक ही तो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखने की जरूरत नहीं है। एंड एनायंस विद सफिक्स विद O, तो यहाँ पे एनायन है, साइनाइड एनायन होता है तो उसे O से सफिक्स करिए। साइनाइड को O से सफिक्स करेंगे तो हो जाएगा साइनाइडो, और इस साइनाइडो को हम साइनो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 है, ये है आपका हेक्सा साइनाइडो। कुछ जगहों पे साइनो भी लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे साइनो ही लिख दिया है। तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब आ जाइए सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम कौन है, आयरन जी है, और आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो इसके फेरम नाम को ही हम यूज करते हैं। लास्ट का यूएम हटा के उसके जगह पे ATE लगा देते हैं, तो यहां पे हो गया फेरेट। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमने पहले भी निकाल रखा था, आपको याद होगा कि सेकंड है, तो यहां पे हो गया सेकंड। सो द नेम इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आई थिंक क्लियर है, समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। दिस इज द कंपाउंड दैट इज द Na3PbBr2Cl2 and I2।
मैंने कई सारे इसमें लिगेंड्स लगा दिए, एक सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड की जगह पे मल्टीपल लिगेंड्स लगा दिए, जिससे कि नाम भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हम यहाँ पे यूज कर पाए। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका फिर से सबसे पहले कैटायन, और यहाँ पे कैटायन क्या है, यहाँ पे कैटायन है सोडियम, और 3 सोडियम है जिसे हम यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं करने वाले, तो हमने लिख दिया सीधा सोडियम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लिगेंड, और लिगेंड यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, एक्चुअली ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड, क्योंकि सब आयनिक फॉर्म में है तो ये इसी टर्म में बोले जाएंगे। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली कौन प्रायोर है, श्योरली ब्रोमीन, बी से स्टार्ट हो रहा है, देन क्लोरीन सी से, देन आयोडीन आई से, तो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में है। नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है वो भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये पहले हमने लिखा डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो, नाउ डाई आयोडाइडो। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में सबको लिख दिया और सबके पीछे ओ सफिक्स कर दिया, बिकॉज़ दे आर ionic by the nature, because they are anionic by the nature. Now the central atom, that is the palladium, और पैलेडियम का इंग्लिश नेम ही सिर्फ चलता है, हम इसे लिख सकते हैं पैलेडिएट। देन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि शायद थर्ड निकल रहा है, तो हो गया आपका सोडियम डाइब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, डाइआयोडाइडो, पैलेडिएट थर्ड। कुछ एक और एग्जांपल्स हम लेके देखते हैं जिससे आप क्लियर हो पाए। तो देखिए, इस कंपाउंड के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम, अगेन इट इज पोटेशियम। नाउ द लिगेंड्स, पहला लिगेंड है साइनाइड, दूसरा है नाइट्राइड, श्योरली अल्फाबेटिकली साइनाइड प्रायोर है, तो पहले हम साइनाइड को ही लिखेंगे। So there are 4 cyanide, so tetra cyanido, then di nitrito। अब यह देखिए, नाइट्राइटो जो है वो खुद में एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसके दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, पहला होता है NO2 और दूसरा होता है ONO। तो in the case of NO2 you will write nitrito N, and in the case of ONO you will write nitrito O। तो हम यहाँ पे NO2 है तो हम लिखेंगे nitrito N। Now the central atom हाइड्रागेरियम, जिसे हम लिखेंगे हाइड्रागेरिएट। Then oxidation number, that is the second। I think it's clear. Now we are taking one more, and that is the last one. This is Pb Cl2 C2O4 twice and -3 charge. This is an ion. अब इसके लिए क्या इसका काउंटर आयन कैटायन है, वो ये चार्ज बताएगा। द नेगेटिव चार्ज हैव द काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो इसका काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा तो ये काउंटर आयन कैटायन के ही रूल रेगुलेशंस पे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा इसका। अब इसके लिए करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटर आयन, तो काउंटर आयन है ही नहीं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। अब आइए लिगेंड पे, क्लोराइड है और ऑक्सिलेट है, 2 क्लोराइड है तो हमने लिख दिया डाई क्लोराइड। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक डाइडेंटेड लिगेंड है, और जब कभी भी एक डाइडेंटेड लिगेंड एक मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ आए, या फिर डाइडेंटेड लिगेंड या कोई न्यूमेरिक लिगेंड हो, तो इन द केस ऑफ न्यूमेरिक लिगेंड और इन द केस व्हेन अ डाइडेंटेड कम्स विद द मोनोडेंटेड, यहाँ पे नंबरिंग लिखने के लिए तरीका अलग होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग 2 के लिए लिखते हैं डाई
3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। वैसे ही अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, यहाँ पे देखिए एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और डाइडेंटेड लिगेंड है, तो जब कभी भी मोनो के साथ डाइडेंटेड लिगेंड आ जाए या फिर कोई न्यूमेरिक लिगेंड आ जाए, न्यूमेरिक लिगेंड मींस ऐसा कोई लिगेंड जिसके नाम में ही नंबर हो, जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है ना, 1 2 दो न्यूमर्स आ गए, तो अगर किसी कंपाउंड के नाम में न्यूमर हो तो उसे हम कहेंगे न्यूमेरिक लिगेंड। तो जब कभी भी कोई न्यूमेरिक लिगेंड हो या फिर कोई डाइडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ आए तो उसके लिए नंबरिंग डाई ट्राई टेट्रा ना करके डाई की जगह पे हम लिखते हैं बिस, ट्राई की जगह पे हम लिखते हैं ट्रिस और टेट्रा की जगह पे हम लिखते हैं टेट्रा किस। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। तो हम इसके लिए लिखें तो डाइक्लोराइडो 2 हैं, ये हो गया क्या बिस, बिस ऑक्सिलेटो। नाउ द सेंट्रल एटम प्लम्बम, लेड को प्लम्बम बोला जाता है, तो ये प्लम्बेट। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर 3, देन प्लम्बेट 3। नाम लिखते समय हम कोशिश करते हैं कि कोई भी स्पेस बीच में ना हो और साथ में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो और सारे लेटर्स स्मॉल हो। दिस इज द जनरल रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स। तो आपने आज देखा नॉमेनक्लेचर फॉर द कैटायनिक काउंटर आयन। अगली वीडियो में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर फॉर द एनायनिक, फॉर द स्पीशीज हैविंग एनायनिक काउंटर आयन as well as the valence bond theory। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।